Good morning everyone and welcome to the class. We are doing the chapter Ruling the Countryside, and under this chapter we will be doing today the Blue Rebellion and after. So as we have discussed in the previous class that the cultivation of indigo was going on in the Bengal in Bengal, and this cultivation of indigo was highly oppressive because as we have seen that there were two types of system of indigo cultivation. The one was Nez and the other was Rayat, and we have seen that under Nez cultivation the planters, or we can say the British and the Scottish people, as well as the officials of the British East India Company who started their work as planters, they faced many difficulties. So most of the this indigo cultivation was done on according to the system of Rayat, in which a contract was signed by the Rayats, and many times the village headman was forced to sign on behalf of the Rayats. Under this contract, what was done, that the Rayats were made to do cultivation on 25% of their land, and for that purpose the advances were given to them, and they were also provided with the seeds and tools, and then they have to pay back the money also which they have been given as advance. And when they completed the harvest is done, and they hand over the product to the the company, the people, the English people, the planters. At that time they were again given the advance for the next crop. So this cycle was going on, and very soon the farmers realized that this is a highly oppressive system, because the planters forced the farmers to grow crops on those land which are most fertile, because indigo cultivation needs fertile soil. Okay, and there was another problem, like the land on which soil on which indigo is cultivated, that land was exhausted completely, because the root of indigo is very long, and it absorbs all the nutrients from the soil. So the soil becomes, so we can say, not suitable for the next crop of rice. And this was the problem, the biggest problem the people were facing. And what we find that because of these problems, the dissatisfaction among the Rayats or the cultivators or the farmers grew manyfold, and very soon there was a Blue Rebellion. Okay, so what happened that in March 1859, thousands of Rayats in Bengal, they started refusing to grow crops, to grow indigo crop. Okay, it happened in March 1859. Okay, and the Rayats also refused to pay the rents to the planters, because they have to pay rents also, you know. And what happened that many times the cultivators attacked indigo factories, and these cultivators, these villagers, were armed with swords and spears, bows and arrows. So all type of weapons, violence was also there among in this rebellion. People used different types of tools like swords and spears and bows and arrows, and not only this, women also turned up to fight against this indigo cultivation. They fought with whatever they have, like pots and pans and kitchen implements. They used all these things to attack the factories and the planters. So what happened that there was another, first of all we are seeing that people
are using violence, है ना, violent methods were used. And next हम देखते हैं what happened, that the people started boycotting, social boycott of those who worked for the planters. जो प्लांटर्स के लिए काम करने वाले लोग थे उनके साथ जो विलेजर्स थे, they started boycotting them. And here one word is there which is used, that is gomasthas. Now what is this? गोमस्थास. इन गोमस्थास से हम क्या मीन करते हैं? गोमस्थास आर एक्चुअली दे आर एजेंट्स ऑफ प्लांटर्स. प्लांटर्स के एजेंट होते थे जो हु यूज्ड टू कम टू कलेक्ट रेंट, है ना, बिकॉज एज वी हैव सीन द कल्टिवेटर्स वर गिवन एडवांस. व्हेन दे साइन दैट कॉन्ट्रैक्ट दे वर गिवन advance for the cultivation of this indigo at a very low rate of interest. So they used these gomasthas to go in the village and to collect the rent from the cultivators. Okay, so these gomasthas were agents of these gomasthas were agents of planters. और ये जो प्लांटर्स के एजेंट थे उनका यही काम होता था कि गांव में जाकर के जो कल्टिवेटर्स हैं, इंडिगो कल्टिवेटर्स हैं, उनसे रेंट लेना. बट व्हाट हैपेंड कि जब ये डिससेटिस्फैक्शन जनरेट हुआ एंड वी सी दैट मार्च 1859 में people started using violence and showing their dissatisfaction against this cultivation of land. What happened that the people started to beating up, they started to beat up these गोमस्थास. इन गोमस्थास को वो मारने लगे. अगर वो गांव में रेंट लेने आते थे तो उनको मारने लगे. जो लोग प्लांटर्स के साथ थे उनका सोशल बॉयकॉट होने लगा. सो दीज वर द वेरियस methods used by the cultivators to show their dissatisfaction, to convey this message that they do not want anymore to do this cultivation of indigo. Okay, so and now the planters, they have they decided, actually we can say that these riots, they swore, शपथ लिया उन्होंने, they swore that they are not going to take advances to sow indigo, है ना. वो एडवांस ही नहीं लेंगे, ताकि अगर एडवांस नहीं लेंगे तो फिर उन्हें आगे वो इंडिगो कल्टीवेशन नहीं करना पड़ेगा. एंड जो प्लांटर्स थे उनके लठियाल्स होते थे. द टर्म विच इज़ यूज्ड इज लठियाल्स. What do we mean by this लठियाल? लठियाल्स हुए जो लठाक, जिसको हम कहते हैं हिंदी में लठियाल्स कहते हैं, लठियाल या लठाल, जो लाठी लेकर चलते हैं. लाठी में बड़ी जो मोटी स्टिक होती है, बहुत मोटी सी डंडी होती है जिससे मारने के काम आता है जो डंडे. तो डंडे लेकर, लाठी लेकर चलने वाले जो प्लांटर्स के लठियाल्स होते थे, प्लांटर उनको अपॉइंट करते थे फॉर दैट पर्पस ओनली, सो दैट द कल्टिवेटर्स कैन बी बुलीड, है ना, ताकि कल्टिवेटर्स जो हैं वो उनके हिसाब से काम कर सके, डर से कि लठियाल आएंगे और उनको पीटेंगे, उस डर से वो उनके हिसाब से काम करे. तो अब क्या हुआ, अब जो कल्टिवेटर्स थे उन्होंने ये शपथ लिया कि अब वो एडवांस नहीं लेंगे और वो लठियाल से भी नहीं डरेंगे. वो अगर लठियाल उनको मारेंगे तो वो भी उनको पलट करके मारेंगे. दिस वॉज डिसाइडेड बाय द कल्टिवेटर्स. सो नाउ द क्वेश्चन इज,
what was the reason for this type of decision that the cultivators are not going to take advance for doing this cultivation of indigo? Why they decided to raise their voice against all these injustice? So why they started to rebel? Why did they started to defy the planters? First of all, the reason is the system was highly, extremely oppressive, है ना? And the people felt, the cultivators felt that the system is highly oppressive, and they are not going to continue with this anymore. But this oppressive system was continued for the very long time. Actually, we find there were some specific reason for this rebellion, which started in 1859. आखिर कुछ ऐसे स्पेसिफिक रीज़न थे जिसकी वजह से हम कहेंगे कि ये जो रिबेलियन है वो 1859 में ही स्टार्ट होता है. ठीक है, सबसे पहले तो ये बात होती है कि जो इंडिगो कल्टिवेटर्स थे, इस समय तक उनके दिमाग में ये चीज़ें धीरे धीरे समझ में आने लगती है कि जो लोकल ज़मींदार हैं और जो विलेज हेडमैन हैं, दे आर विथ द कल्टिवेटर्स. जो उनका जो सोचना था वो सही था या नहीं, दैट इज़ नॉट अ मैटर. दे स्टार्टेड टू थिंक, they were of the opinion that the cultivators, the zamindars and the village headmen are in their support against the planters. Because what we find that in this all this indigo cultivation, the village headmen and the zamindars were also at loss. उनका भी लॉस हो रहा था. कई सारे विलेजेस ऐसे थे जहाँ पर हेडमैन जो थे उनको इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स पे फोर्सिबली साइन करना पड़ता था. वो इंडिगो पेजेंट्स को मोबिलाइज करते थे और ताकि वो जो उनके लठियाल्स आ रहे हैं प्लांटर्स के, उनके साथ वो लड़ सके और जो उनके ऑर्डर्स है वो उसको डिफाई कर सके. तो लोकल ज़मींदार जो उनका जो पोजीशन था, जो हेडमैन का, विलेज हेडमैन का, जो लोकल ज़मींदार की जो पोजीशन हुआ करती थी विलेज के अंदर, वो पोजीशन अपनी लूज़ कर रहे थे बिकॉज ऑफ दीज प्लांटर्स. सो दे वांटेड टू गेट बैक देयर पावर. उनको अपनी पावर को वापस लेना था और इसलिए वो देवर अगेंस्ट द प्लांटर्स, क्योंकि अब प्लांटर्स इन्फ्लुएंशियल बन गए थे. जबकि पहले की अगर विलेज की कंडीशन देखें तो जो ज़मींदार्स और हेडमैन थे वो इन्फ्लुएंशियल थे, लेकिन अब प्लांटर्स इन्फ्लुएंशियल बन गए थे. तो ये प्लांटर्स के इन्फ्लुएंस को कम करना चाहते थे और इसलिए इन्होंने जो कल्टिवेटर्स थे उनको धीरे धीरे उन्होंने, जिसको हम कहेंगे कि भड़काना, इंस्टिगेट करना स्टार्ट किया, ताकि जो रैयत्स हैं, जो कल्टिवेटर्स हैं, वो बात नहीं माने प्लांटर्स की, वो प्लांटर्स के हिसाब से काम न करे. जब लठियाल्स उनको आए डराने के लिए, धमकाने के लिए, तो वो लठियाल्स को ही उल्टा मारे, है ना. तो इस तरह से जो चीज़ें हो रही थी वो इससे कल्टिवेटर्स के भी दिमाग में ये बात समझ में आ गई कि जो विलेज हेडमैन है और जो ज़मींदार्स हैं वो उनके साथ हैं, है ना. और इस तरह से एक बहुत बड़ा उनको सपोर्ट मिला ज़मींदार्स और हेडमैन का. और इसके अलावे भी कुछ और रीज़न थे इसमें. कि हम ये देखते हैं कि जो इंडिगो पेजेंट्स थे उनको क्या लगा, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट भी जो है वो भी उनका साथ देगी. एक तो उनके दिमाग में ये था कि मतलब थे भी लोकल ज़मींदार और हेडमैन जो थे, देवर विद द कल्टिवेटर्स. दूसरी चीज़, कल्टिवेटर्स को ये भी समझ में आया कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो भी उनको उनके इस स्ट्रगल में सपोर्ट करेगी. इसके पीछे क्यों उनको ऐसा लगा कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू सपोर्ट देयर रेबेलियन अगेंस्ट द प्लांटर्स? बिकॉज जस्ट पे अटेंशन ऑन द ईयर. द ईयर इज़ 1859.
as I told you earlier also, though you have not read about the revolt of 1857 yet, but 1859 जो टाइम है वो 1857 के बाद का टाइम है। एंड 1857 में सिपोई म्यूटनी हुआ था, जो कि बहुत ही लार्ज, इसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे फॉलोइंग चैप्टर्स में, हमें पढ़ना है पूरा चैप्टर हमारा 1857 के रिवोल्ट पे। तो ये जो रिवोल्ट हुआ था वो बहुत ही पावरफुल था, और इस रिवोल्ट ने ये एक तरह से प्रूव कर दिया कि ब्रिटिश पावर को ये समझ में आ गया कि अगर दोबारा से इस तरह का रिवोल्ट, इस लेवल का रिवोल्ट होता है, तो उनके लिए इंडिया में अपने रूल को कायम रख पाना बहुत ही मुश्किल होगा। ठीक है, और इसलिए इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने इनको ये जो चीज़ें थी वो कुछ इस तरह से हो रही थी कि 1857 के बाद उनका जो एटीट्यूड था ब्रिटिश का वो बदल गया। एक चीज़ तो बहुत सारे चेंजेस आए 1857 के बाद, लाइक जो कंपनी का रूल था वो ख़त्म हो गया, एंड द रूल ऑफ इंडिया वेंट डायरेक्टली इनटू द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, ब्रिटिश क्राउन। ठीक है, तो बहुत सारे चेंजेस आए, और 1857 के बाद के जो सिचुएशंस थे उसमें हम यही देखेंगे, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी जो इंडिया में रूल कर रही थी वो पैसिफाई करना चाहती थी, वो चाहती थी कि फिर से उस तरह की नौबत नहीं आ जाए। So when this news of starting of a kind of revolt spread in the presidency of Bengal, we find that the lieutenant governor toured the region in the winter of 1859. उनको ये समझ में आया कि जो कंडीशन हो रही है, जिस तरीके से लोग रिएक्ट कर रहे हैं, इट कैन लीड टू अ रेबेलियन, है ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल ने टूर किया विंटर में, जनवरी के मंथ में वो उन्होंने बंगाल रीजन का टूर किया। तो जब उनके आने से, जब वो बंगाल में आए लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो रैयत्स जो थे उसको ये समझे कि ये जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हमारे प्रॉब्लम के लिए हमारे जगह पे आया है, ये बहुत बड़ी बात है ना। तो इसके लिए क्या हुआ, जो रैयत्स थे उन्होंने इसको एक ऐसा साइन माना कि गवर्नमेंट जो है वो हमारे साथ है ना। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज़ विथ अस अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स। ठीक है, और इसी समय एक और इंसिडेंट होता है बारासात में, जो कि एक जगह के नाम है बारासात। जो मजिस्ट्रेट वहाँ पर थे, बारासात के जो मजिस्ट्रेट थे एस्ली एडन ने एक नोटिस इशू किया, जिसमें कि उन्होंने ये कहा कि बारासात में मैजिस्ट्रेट, ठीक है, मैजिस्ट्रेट ने एक ऑर्डर इशू किया, नोटिस इशू किया, जिसमें ये कहा गया कि रैयत्स वुड नॉट बी कंपेल्ड टू एक्सेप्ट इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट्स। इट मीन्स दैट दे कैन नॉट बी फोर्स्ड टू एक्सेप्ट द इंडिगो contract. If they want, they can they cannot sign, they cannot be compelled to sign on the contract, है ना। उनको कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए कंपेल नहीं किया जाएगा। ये था मजिस्ट्रेट एडन एस्ली के नोटिस। एस्ली एडन इन्होंने यही नोटिस दिया, और इस पे नोटिस क्या था कि दे विल नॉट बी कंपेल्ड टू साइन द इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट। बट मैसेज क्या गया लोगों में? द मैसेज वॉज दैट क्वीन विक्टोरिया हैड डिक्लेयर्ड दैट इंडिगो नीड नॉट बी सोन। ठीक है, इन्होंने नोटिस दिया दैट द कल्टिवेटर्स will not be compelled to sign इंडिगो कॉन्ट्रैक्ट, है ना। This was the notice, but what was the
this message people got, the message the riots got, that the Queen Victoria, उस समय जो ब्रिटेन की क्वीन थी, तो लोगों को ये समझ आया कि क्वीन विक्टोरिया had declared that indigo need not be sown. So this is what we call र्यूमर. इसी को हम र्यूमर कहते हैं. ऐसा र्यूमर हो गया कि विक्टोरिया ने ये कहा है कि हमें इंडिगो की बुआई नहीं करनी है, इंडिगो की खेती नहीं करनी है, जबकि एस्ले ने ये कहा कि कल्टिवेटर्स को कंपेल नहीं किया जाएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए. अगर उनको मर्जी होगी तभी वो साइन करेंगे. दे विल नॉट बी फोर्स्ड टू साइन द कॉन्ट्रैक्ट. बट मैसेज जो गया, र्यूमर जो हो गया, वो ये हो गया कि क्वीन विक्टोरिया जो है वो ये कह रही है कि इंडिगो की खेती करने की ज़रूरत नहीं है. सो the purpose of Eden was to pacify the indigo cultivators, है ना. He wanted that there should not be any kind of unrest among the peasants. They should be pacified by this notice that they cannot be compelled to sign the contract. जो भी dissatisfaction था उससे वो pacify हो जाएगा, दब जाएगा, शांति हो जाएगी. But actually we find that his action went into the support of the rebellion because he was we can say misquoted. People understood that the Queen Victoria has said that there is no need to sow the इंडिगो, देयर इज़ नो नीड ऑफ डूइंग इंडिगो कल्टिवेशन. तो इसके कारण जो उनका जो रोष था, जिसको हम कहेंगे असंतोष जो था, जो डिससेटिस्फैक्शन था, वो और बढ़ गया. तो जो पर्पस था एस्ले एडन का कि इसको पैसिफाई कर दिया जाएगा, एक्चुअली वो गलत हो गया. वो इसके कारण उनको लगा कि क्वीन विक्टोरिया हमारे साथ है तो हम इनके अगेंस्ट लड़ सकते हैं, है ना. लड़ने के लिए सिर्फ आपको मेंटल पावर चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए. थी नहीं क्वीन विक्टोरिया उनके साथ, लेकिन उनको ऐसा लगा कि क्वीन विक्टोरिया उनके साथ है और वो लड़ गए और वो जीत भी गए. दिस इज़ द थिंग. वी ओनली नीड मेंटल स्ट्रेंथ to fight against injustice and any kind of thing which is happening which is not according to our own desire, है ना. हमें सिर्फ मेंटल ताकत चाहिए, फिजिकल ताकत की ज़रूरत नहीं होती, वो सबके पास होती है. हमें चाहिए कि हम अपने दिमाग को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, फियर से हम दूर हो जाएं, डर ना रहे, तभी हम लड़ सकते हैं अन्याय के अगेंस्ट. तो यही हुआ. और इसके बाद हम देखते हैं कि रेबेलियन जो है वो पूरा स्प्रेड कर गया. और इतना ही नहीं, फिर जो कैलकटा से बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स जो थे वो इंडिगो डिस्ट्रिक्ट्स में विज़िट करना उन्होंने स्टार्ट किया. और बहुत सारे मिजरीज जो इनके दुख भरी कहानी जो इनकी थी इंडिगो कल्टिवेटर्स की, वो सामने आई. किस तरह से उस पर कहानियाँ लिखी गई, क्योंकि इंटेलेक्चुअल्स थे, दे वर द ऑथर्स, दे वर द एडिटर्स ऑफ द न्यूज़पेपर. तो उन्होंने इस तरह की चीज़ों को पब्लिश करना स्टार्ट किया. तो इससे क्या हुआ कि पूरी दुनिया तो नहीं कहेंगे बट पूरे देश का जो ध्यान था इस तरफ गया. फिर प्लांटर्स की टेरेनी, वो किस तरह से अत्याचारपूर्ण बिहेवियर करते हैं, ये सब कुछ सामने आया. और ये जो इंडिगो सिस्टम है कल्टीवेशन का वो कितना ऑप्रेसिव था, ये चीज़ें सामने आई. तो जब तक हम चुपचाप चीज़ों को सहते रहते हैं तब तक क्या होता है, तब तक हम पर और भी अत्याचार होता जाता है. इसलिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, रेज योर वॉइस अगेंस्ट एनी काइंड ऑफ इनजस्टिस. जब तक हम वॉइस रेज नहीं करेंगे तब तक उस इनजस्टिस के एंड होने का कोई स्कोप नहीं है. जब हम अपनी आवाज़ उसके अगेंस्ट उठाते हैं तब दुनिया का ध्यान उस पर जाता है, अदरवाइज़ किसी को पता भी नहीं है कि हमारे साथ क्या हो रहा है. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेक द वर्ल्ड नो व्हाट इज़ हैपनिंग, है ना. दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप. तो ये चीज़ें हुई जो बहुत पॉजिटिव हुई. इंटेलेक्चुअल्स के आने से उन्होंने बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स थी लोगों की उनको सामने रखा और इस तरह से ये रेबेलियन जो है वो एक बड़ा फॉर्म लेने लगा. अब जो गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट,
वो काफ़ी परेशान हो गई, क्योंकि 57 में ही वो इतने बड़े रिवोल्ट को देख चुके थे। अब दोबारा से वो रिवोल्ट को सहने के लिए दे वर नॉट रेडी। और इस तरह से इसी समय जैसे कि हम देख रहे हैं जो प्लांटर्स थे उन पे वायलेंट अटैक्स भी हो रहे थे। तो अब गवर्नमेंट को मिलिट्री को यूज़ करना पड़ा अपने प्लांटर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। और इसी के साथ साथ उन्होंने एक इंडिगो कमीशन भी सेटअप किया, जिसका पर्पस ये था कि देखा जाए कि इंडिगो प्रोडक्शन के सिस्टम के बारे में इंक्वायरी करना। ठीक है, सो दिस इंडिगो कमीशन वाज सेटअप। व्हाट वाज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिबेलियन? द कॉन्सिक्वेंस ऑफ दिस रिबेलियन वाज द सेटिंग अप ऑफ इंडिगो कमीशन। Okay, so this Indigo Commission was given this duty, this assignment to inquire into the system of indigo production, and the commission did the inquiry, and it found that the planters were guilty. They criticized them for coercive methods which was used by them against the indigo cultivators. And it declared that indigo production was not profitable for ryots, है ना? It was profitable for planters, but it was not profitable for ryots. So it was given in its report that indigo production was not profitable for ryots, and the ryots were asked to fulfill their existing contracts. Okay. They were just required to fulfill the existing contracts, and they could refuse to produce indigo in future. बस अभी जो आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है उस कॉन्ट्रैक्ट को आप पूरा कर लीजिए, उसके बाद आगे you can refuse to grow this indigo. It is up to you, है ना? आप चाहें तो इंडिगो के लिए आगे अगर आपकी मर्जी है तो आप उस पर जाइए, नहीं तो आप उसको नहीं कंटिन्यू करिए। तो इस तरह से ये दिस रेबिलियन वॉज कम्प्लीटली सक्सेसफुल, है ना? कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया उस रिपोर्ट में यही कहा गया कि प्लांटर्स गलत हैं और रैयत्स के लिए ये ऑप्रेसिव सिस्टम है। सो रिवोल्ट के बाद इंडिगो का प्रोडक्शन जो है वो इस रिपोर्ट के आने के बाद इंडिगो प्रोडक्शन बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता है, क्योंकि कोई भी रैयत अपनी मर्जी से उस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। एंड इस तरह से बंगाल जो था, जो कि इंडिगो कल्टिवेशन का सेंटर बना हुआ था, अब वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है, लेकिन इंडिगो कल्टिवेशन नहीं ख़त्म होता है। बंगाल में जो सेंटर था दैट नाउ शिफ्टेड टू अदर लोकेशन, दैट इज़ बिहार, है ना? तो अभी तक जो बंगाल में हो रहा था, अब बंगाल में चूँकि रेबेलियन हो गया तो बंगाल से वो शिफ्ट होकर के बिहार चला जाता है। और इसी समय एक और डेवलपमेंट होता है, क्योंकि अब हम लेट 19th सेंचुरी में हैं, है ना? वी आर इन लेट 19th सेंचुरी। सो न्यू सिंथेटिक डाइज, सिंथेटिक डाइज का मतलब क्या हुआ? सिंथेटिक डाइज हुए, जैसे कि जो हम लोग कलर्स यूज़ कर रहे हैं, इंडिगो दैट इज़ नेचुरल डाई, है ना? नेचुरली प्रोड्यूस्ड है। अब सिंथेटिक डाई क्या हुआ? जो कि केमिकल से कलर प्रोड्यूस किया जाता है, उसको हम सिंथेटिक डाई कहते हैं। तो अब 19th सेंचुरी के एंड में होते होते सिंथेटिक डाइज आ गए, है ना? और इस कारण से अब इंडिगो की उतनी नीड भी नहीं रह गई, लेकिन फिर भी जो जिनको नेचुरल डाइज चाहिए थी वो तो अभी भी इसी के लिए इंसिस्ट करते थे। तो अभी भी बिहार में ही इंडिगो कल्टीवेशन हो रहा था। और इसी समय महात्मा गांधी 1915 में वापस आते हैं फ्रॉम साउथ अफ्रीका, और उस समय ही एक ये बिहार का एक पीजेंट जो था वो ये महात्मा गांधी से उनकी मुलाकात होती है। वो सारे प्लाइट को सामने रखते हैं कि किस तरह की कंडीशन है, और बिहार में चंपारण के जो पीजेंट्स थे उनकी बहुत ही ख़राब कंडीशन हुई पड़ी थी बिकॉज ऑफ दिस इंडिगो कल्टीवेशन। तो उन्होंने
परसुएड किया गांधी जी को कि चंपारण आप चल के विजिट करिए और वहाँ पर जो प्लाइट हुई पड़ी है इंडिगो कल्टिवेटर्स की उसको आप देखिए और उसके लिए आपको कुछ डिसीजन लीजिए आप अकॉर्डिंगली, जैसी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजन लीजिए। तो उसने उस पेजेंट जो बिहार का पेजेंट था उसने बहुत परसुएड किया महात्मा गांधी को और फिर महात्मा गांधी ने विजिट किया 1917 में और उसी में चंपारण सत्याग्रह जो है जिसको हम कहते हैं चंपारण मूवमेंट, इंडिगो प्लांटर्स के अगेंस्ट ही ये मूवमेंट स्टार्ट होता है, चंपारण सत्याग्रह जिसको हम कहते हैं। और इसका मेन पर्पस यही था कि किस तरह से जो इंडिगो कल्टीवेशन जो कि हाईली ऑप्रेसिव सिस्टम है उसके एंड करने के लिए ही ये चंपारण सत्याग्रह जो है वो स्टार्ट हुआ था। ओके।